Hello friends, so my name is Ashish Kumar Gupta. I am here for joining the Unacademy internship program in the category of the GATE and DAC. So I am passionate about the teaching. So Unacademy give the great opportunity for becoming a good teacher. So we can join the Unacademy internship program, and we can work under the India's best educator. So we can learn the lot of things that will be required for a teaching. So I am always teaching bilingually, so it is a very helpful for a student, so that will be easy to communicate and easy to understand the concept. And apart from that, I have a good conceptual knowledge for subject, so that will be a very easy to deliver and easy to understand the concept. So and also I have a 3 to 4 years teaching experience, and also I have qualified the graduate aptitude test in the 3 to 4 times, and EAC pre in the 1 time. So I am a better choice for this. So my content plan is I am here for teaching manufacturing process. So there is a four manufacturing process: casting, welding, joining, casting, welding, or forging, or joining. So there is a four manufacturing process, basically four manufacturing process, and two or three are other manufacturing process or advanced manufacturing process. So we can here for teaching manufacturing process. So I am my content plan for approx 100 hours. So we can teach here firstly a casting process. So in the casting process, casting is nothing but is a we can if you want to produce any product or any shape of a product, so we can produce by the casting. So we can go for uh, we can go for a product that will be a manufacturing. So we can produce a pattern for this product, and now after that we can produce a mold, and after that we can mold molten metal in the mold and solidify, then after take a casting. So casting process is a basically very easy and simplest way to produce the product. So here we can learn the lot of things, the types of casting process and application, sand casting, or pattern, types of material allowance. So here we can learn the lot of things, and the molds, core making, how to making, and the testing, and the buring system and gating system. All the things we are learn from the basic to advanced. So here and in the casting process, so whole syllabus will be completed. After that we can practice a numerical or logical question that will be asked from previous year or next year. So we can learn here, or casting after numerical and doubt solving we can take it. फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. So metal forming process, in this process we can produce a metal, we can produce a product by forming a metal. That means here a metallic piece, so we can put in the die and apply the force and produce the pattern, those shape that will be required for a product. So we can produce here. सो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले अपन को यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, अपन को कितना फोर्स लगाना है ताकि ब्रेक ना हो अपना प्रोडक्ट, है ना, वो अपन को पता होना चाहिए. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पता होना चाहिए, है ना, फ्लो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए. फिर अपन किस टाइप की फॉर्मिंग कर रहे हैं, कि हॉट वर्किंग कर रहे हैं, कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, वार्म वर्किंग कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए. रोलिंग, एक्सट्रूजन, ये सब चीज़ अपन को पता होना चाहिए. ठीक है. आफ्टर दैट वी कैन
सीट मेटल प्रोसेसिंग। सो सेम इज द फॉर्मिंग प्रोसेस। अपने पास एक सीट होगी, उसको उसमें से अपन उसका प्रोडक्ट को सीट में से प्रोड्यूस करेंगे बाय होल, मतलब होल को प्रोड्यूस करेंगे और ब्लैंक को बाहर निकालेंगे। तो सीट मेटल ऑपरेशन, पंचिंग, ब्लैंकिंग, ब्लेंडिंग, स्ट्रेचिंग और वेंडिंग वी कैन हेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोन ऑफ एरोप्लेन्स। सो स्पिनिंग, डीप ड्राइंग, है ना, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कास्टिंग के डिफेक्ट, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उसके बाद कॉजेज़ क्या क्या डिफेक्ट के कारण कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डाउट सॉल्विंग लेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी कैन हेयर फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस में अपन क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ द वेल्डिंग, सबसे पहले वेल्डिंग प्रोसेस में होता क्या है। वेल्डिंग प्रोसेस में अपन, ये एक परमानेंट प्रोसेस, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसमें अपन दो प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं बाय द परमानेंट, सो इसको बोलते हैं अपन वेल्डिंग प्रोसेस। सो इसमें प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस क्या है ना, ये सब अपन यहाँ पे देखेंगे वेल्ड। फिर उसके बाद देखेंगे बल्क, मतलब वेल्डिंग डिफेक्ट कौन कौन सी होंगे, है ना। फिर यहाँ पे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, एडहेसिव वेल्डिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद अपन देखेंगे मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में अपन देखेंगे मशीनिंग में क्या है, जैसे अपन ने कास्टिंग में जो भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब उसका शेप और साइज हमें एग्जैक्ट बनाने के लिए हम उसको मशीनिंग में जाते हैं, ठीक है। तो मशीनिंग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक टूल होगा, उसके थ्रू हम उसमें जो भी हमें एक्स्ट्रा मटेरियल है हमारे प्रोडक्ट में, जैसे मुझे ये पेन बनाना है, इस पेन में अगर मैंने प्रोड्यूस करा तो इसका 10 mm है यहाँ पे मुझे बनाना है और यहाँ पे 12 mm का है, तो उससे 2 mm मटेरियल हटाएंगे और उसमें मतलब ईजी टू होल्डिंग, शार्पनिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन प्रोड्यूस करेंगे ताकि मटेरियल हमारा जो प्रोडक्ट बने वो कैसा अट्रैक्टिव बने। तो वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बाय द मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस, ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन देखते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, है ना, और टूल सिग्नेचर, चिप वगैरह, चिप फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन सी कंटिन्यूस चिप होगी, है ना, या डिसकंटिन्यूस चिप होगी, फिर कटिंग फोर्सेस को कितने लगेंगे, फिर मर्चेंट एनालिसिस कैसे होगा, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ पे। स्पेसिफिक एनर्जी, पावर कंजप्शन कैसे होगा, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। मशीनिंग पैरामीटर बहुत सारे, मटेरियल रिमूवर रेट, है ना, ये सब चीज़, टूल वियर देखेंगे, टूल लाइफ देखेंगे। इसके बाद इसमें कटिंग फ्लूइड कौन कौन, ताकि हम जब भी क्या है, जब अपन कटिंग करेंगे तो फ्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे कटिंग, तो अपना जो पावर होगा कंजप्शन बढ़ जाए अगर फ्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हुआ तो उसको कम करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक लुब्रिकेंट के जैसे उसको बोलते हैं कटिंग फ्लूइड, तो कटिंग फ्लूइड यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इकोनॉमिक ऑफ मशीनिंग मतलब कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा तो नहीं लग रहा या कम तो नहीं लग रहा। इकोनॉमिक ऑफ मशीनिंग का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे मिनिमम फोर्सेस लगेगा, है ना, और मिनिमम कॉस्ट आएगी, कटिंग कॉस्ट, तो वो पॉइंट हमें वहाँ पे, मतलब जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कोई भी चीज़ तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन लर्न हियर द लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद फिर अपन मशीनिंग प्रोसेस में अपन देखेंगे टर्निंग क्या होती है, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, ये सारे मशीनिंग ऑपरेशन है, ये सब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। फिनिशिंग ऑपरेशन जैसे ग्राइंडिंग, ऑनिंग, लीपिंग, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, जैसे अपन को पता है फिनिशिंग ऑपरेशन होता है ऑनिंग प्रोसेस, मतलब जो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है वो अपना जो पिस्टन होता है जो अपना रेसिप्रोकेट करता है उसको अपन होनिंग के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वी कैन हियर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। सो फिर उसके बाद मशीन टूल कौन कौन से, लेथ मशीन, ड्रिलिंग, बोरिंग, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे, शेपिंग मशीन टूल्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं। जैसे अपन को पता है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि ये इनमें जो प्रोसेस होती है इनमें अपना टूल का और वर्क पीस का कांटेक्ट नहीं होता,
ठीक है। टूल और वर्क पीस का कांटेक्ट नहीं होता, विदाउट टूल और वर्क पीस के कांटेक्ट के वी कैन रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस, है ना। तो ये हमारी जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे यूएसएम, अल्ट्रासोनिक, एजीएम, है ना, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे ईडीएम है, वायर है, एलबीएम है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें अपन रफनेस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल और डाउट सॉल्व भी लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो लेट्स क्रैक इट।